now being recorded in this society. Okay, good morning everyone. So in today's class, I'm going to introduce chapter number 2, inverse trigonometry. For this, we need the basic understanding of functions, the type of function which is actually covered in your chapter number 1. But since the chapter number 1, if you recall in 11th also, you did relations and functions, that is little bit harder and abstract in nature. So generally what we do in our school and most of the schools, even all the schools all over, what the teachers used to do, they teach this chapter at the end, right? Once your syllabus is almost over, then we take this chapter so that you can easily revise and revisit and then appear for your board examinations. But whatever basic idea is required to understand the meaning of this inverse trigonometric functions, that I'm going to cover. And for that, we need the basic idea of trigonometry definitely and about the basic function. So what are the learning objectives? What we are going to cover in this particular chapter number 2? We will be defining the inverse trigonometric functions, the conditions for their existence, defining their principal values, the most important thing, then understanding their domain and range using the graph, and then the method how to find that. Some formulas referred to as the properties of inverse trigonometric functions and the problems based on them. What exactly is required, expected background knowledge, that is all about the function, domain and range, the basic idea, and the formulas of trigonometric functions. So I am sure that most of you are able to recall, or you will be able to recall the formulas related to trigonometry, because all those trigonometric functions, whatever you have studied in 11, they are going to play a very, very important role. Now, what exactly we mean by a function? Function is basically a special kind of a relation and at least function you did in class 11th, right? So function if from A to B is a relation in which every A belongs to A is uniquely associated with f of A, generally which is represented by y या B कह दीजिए, तो B belongs to B. Understand this definition of the function by some simple diagram. So if this is set A, this is set B, if for every element A there exists a unique element B, wherein A will refer to as the pre-image of B and B will be referred to as the image of A. Set A is always referred to as domain. Set B is always referred to as codomain in a case of a function. Every element of first set must have a unique element in the set B. If this condition holds true, then it is a function. So what is not a function? Let me just consider one simple diagram, not a function. So if there is a set A, there is a set B, say this is 1, 2, and say 3, 4, 5, 1 with 3 and say 1 with 4, right? And say 2 with 5. Now in this case, the element 1 do not have a unique image. So uniqueness of image is violated, hence it is not a function. Let me consider one another case. There is a set A, there is a set B. Say 1, 2, 3 and A, B, C, D. 1 with A, 2 with B, and that's it. Okay. So in this case, observe that if the elements in B are vacant, C and D, if they are vacant, it doesn't affect our function. But at the same time, as the definition says, every A belongs to A. So what happened in our case?
the element 3 is there, which is not associated with any element of B. So 3 do not have a image, hence it is also not a function. So I'm sure ये recall हो गया होगा the basic definition of the function which you already have studied in class 11th. Then one function. Again, types of a function will be studying in details later on, but just the basic idea as a name suggests, one function. So f from a to b is said to be one or injective if different elements of a have different images. What does that mean? A1 has a unique image b1, a2 has some unique image b2, a3 has some unique image b2, like this. So please make it sure this is clearly a function. Already function, both the definitions are satisfied. What are all those definitions? First one was each element must have the unique element or the image in another set B. So it is a function. Now, one of the possibility, as we have seen in the last diagram, for a function is that say this is a1, a2, and say there is b1. So if I have a situation like this, greater than type of a situation, so though it is a function, but now it is not 1. Why it is not 1? As the elements a1 and a2, they are associated with the element b1. So greater than type of a situation, that will be actually then referred to as a many one function. So one-to-one function, basic idea is clear. One-to-one correspondence is there. One-to-one correspondence, what does that mean? Like uniqueness. So A1 with B1, A2 with say B3, and A3 with B2. Next is important definition for the onto function, also referred to as the surjective map. The function is said to be onto or surjective if all the elements of B have pre-image in B. What does that mean in simple word? Range of the function is exactly equal to the codomain. Observe here. This is a function. So that is our first observation. Check the basic definition. Each element has a image over set B. Right? If say there is some element B4 which is left out. So by definition, क्या हो गया? B4 is left out. So this has got no pre-image over here. Hence, जो मैंने अब B4 से लिखा है, that will not be a onto function. But if I remove this element, then again check it out. अब clear definition जो हो रही है, that each that each element in B, अब हम B से देखना शुरू कर रहे हैं, तो each element has a unique pre-image. इसके लिए ये यूनिक है और B3 के लिए इसके लिए ये भी इमेज आ रही है और ये भी इमेज आ रही है. रिमेंबर, अगर ग्रेटर देन टाइप सिचुएशन दिख जाए तो एक तो ये मैनी वन फंक्शन है, बट अभी का फोकस हमारा है फॉर ऑनटू फंक्शन. तो ऑनटू के लिए क्या होना चाहिए? ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट बी यूज्ड. So if these two conditions are satisfied, we say my function will become 1
and onto function, which is actually referred to as a bijective function. The function is bijective if it is both 1 1 and onto. Look at the diagram, it will make it very clear. Now it is 1 1. How we can be sure about 1 1? चेक करिए, ग्रेटर देन का साइन एक तरह से नहीं होना चाहिए, तो ये इसके साथ है एसोसिएट, ये इधर है और ये इधर है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, बट दिस इज 1 1. फॉर ऑनटू, no element of B should be left out. So one can check it out, B1, B2, B3, B4, वो सारे एलिमेंट यूज भी हुए हैं, तो hence it is simple example of your 1 1 and onto function, and hence a bijective function. Any doubt to anyone up to this step? You can raise your hand or unmute and ask. If a function is bijective, okay, so if the function is bijective, in that case we say the function is invertible, और invertible का मतलब we can find its inverse. तो अगर आपके पास एक फंक्शन f गया था a to b, हम इसके इनवर्स की बात करेंगे from b to a, बट ये तभी पॉसिबल है इनवर्स जब वो फंक्शन bijective होगा. And why we are referring and talking about this over here? The chapter name is inverse trigonometric functions. So we are looking into the possibility of existence of the inverse of trigonometric functions. So let's see, are they existing? For that, quickly define inverse of a function. F from a to b, the inverse is g from b to a. Check this out. Set A, set B, association referred to by function f, और इनवर्स जो है वो हो जाएगा b to a as the function g. Generally functions are represented by a small letter f and g, so that you can understand easily. So inverse of a function denoted by f inverse x, and inverse कब exist कर रहा है? If and only if the function is 1 1 and onto. So that's a basic thing I already have explained. Now basic idea, quick revision, class 11th ka properties of sine and cosine functions. Remember and recall their graphs. I'll be showing them also. So graph of sin x ho ya cos x, they have a very similar kind of a properties. Domain is a set of real numbers. और डोमेन का मतलब क्या होता है, याद करिए, what values x can take. So this is a real number. रेंज की जब हम बात करते हैं, what values y can take, मतलब फाइनल आंसर sin x या cos x, what values they can take. We know the answer always lies between -1 to 1. That is -1 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेंगे. So whatever may be the angle, positive, negative, larger, smaller, in every case the value will lies between -1 to 1. And each function cycles through all the values of a range over an x interval of 2 pi. Or in simple word, it is a periodic function with a period as 2 pi. हर 2 pi की cycle के बाद graph of the function of sin x and cos x starts repeating itself. और अगर मैं tan x की बात करूं तो tan x का period
पाई होता है। पाई पाई के एक इंटरवल के बाद ग्राफ ऑफ tan x will start repeating itself. Let's understand and visualize it quickly over here. Here's a graph of sin x. Just for your reference, few values are taken, but at the end of the day, we are not going to graph or plot or get this table. You just need to learn the basic shape of sin x. So I'm sure everyone is able to recall. So this is the graph of sin x, right? So what happens in the case of sin x? From 0 to 2 pi, focus on your x-axis and the shaded one, this red graph. So this graph represent the graph of a sine function. तो ये डिक्रीज हुआ पाई तक, फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 तक फिर डिक्रीज है, एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू 2 पाई. रिमेंबर द वैल्यूज क्या क्या हैं आपके पास यहाँ पर. सो दिस पॉइंट इज रेफरिंग टू, क्या हो जाएगा अगर आप इसे ध्यान से सोचेंगे. सो दिस पॉइंट इज पर्टिकुलरली 3 पाई बाय 2 कॉमा -1, एंड दिस पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, पाई बाय 2 कॉमा 1. एज वी प्लॉट इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये x कॉमा y ही तो मैंने लिखा है. तो बाय लुकिंग एट द ग्राफ, इफ आई आस्क व्हाट इज साइन पाई 0, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, एनीवन. ग्राफ को देखकर साइन माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 पे ये पॉइंट है एंड द वैल्यू इज -1. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी एक्चुअली माइनस पाई बाय 2 टू -1. सिमिलरली साइन माइनस पाई 0 है. साइन ऑफ 5 पाई बाय 2, one can easily visualize sin pi by 5 pi by 2, that is 1. yes, ठीक है समृद्धि. सो द बेसिक आइडिया इज वैल्यू अगर आप देखें, जो मैंने रेड ग्राफ दिखाया है रेड कलर से, 0 से 2 पाई में राइट साइड के अंदर इट गोज ऑन इंक्रीजिंग टू इंडेफिनिट एंड टू लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. ये चीज हमें पहले से पता है. अब जब हम ग्राफ ऑफ इनवर्स साइन फंक्शन की बात करेंगे तो एक्चुअल में एक बेसिक डेफिनेशन में और आपको इजी वे बता देता हूं. अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन रहा था से y इक्वल टू fx, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, इसका इनवर्स क्या हो रहा है, f इनवर्स. तो x विल बी, x क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y. And if a comma b is a point on my graph of the function, b comma a will be the point always lies on the inverse of the function f. This is a very very important rule using which we can graph the function. और ab से ba कैसे आता है पॉइंट, अगर आप x और y एक्सिस के ऊपर इमेजिन करें, ये गई आपका लाइन y इक्वल टू x. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. y इक्वल टू x, इमेजिन के आपने यहां पर मिरर रख दिया था, मिरर इज प्लेस्ड. और अब अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, f का ग्राफ बना दिया और आप उसकी इमेज देखो y इक्वल टू x के अलोंग, द इमेज जो आपको दिखाई देगी that will be actually the graph of f inverse. So this is the graphical understanding of the definition of inverse of a function. अब आप चेक करिए, is this function 1 sin x की अगर मैं बात करूं, क्या वो 1 है, अभी तो हम उसके इनवर्स की बात करेंगे ना. साइन एक्स अगर
1 1 हुआ एंड ऑन टू हुआ, then only we talk about the inverse of sin x. But note carefully, आपके पास साइन ऑफ जीरो भी जीरो है, साइन ऑफ पाई भी जीरो है, 2 पाई भी जीरो है, एंड सो ऑन. तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन सभी वैल्यूज के ऊपर तो सेम आंसर आ रहा है. तो अगर मैं इस सिचुएशन को सिंपल वे में डिपिक्ट करूं, कैसे, ये एंगल है यहां पर और ये मेरा फंक्शन है साइन एक्स. तो लॉजिकली सोचिए, मैं सिंपल एक केस लेता हूं, साइन जीरो जीरो, साइन पाई अगेन जीरो. तो ये तो ग्रेटर देन का साइन आ गया. और याद रखिए, अगर ग्रेटर देन टाइप सिचुएशन दिख गई, इसका मतलब इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन. तो साइन एक्स एक्चुअली 1 1 नहीं होता है. साइन एक्स इज नॉट 1 1. अब फिर से अगर मैं ये चीज देखूं यहां ध्यान से, ऑन टू है या नहीं है साइन एक्स, ये एक्स है, ये वाई है. याद रखिए, वाई हमने याद रखा हुआ है, स्टार्टिंग में देखा था. वाई क्या है एक्चुअली, जनरली आपको पता है हम यहां क्या लिखते हैं, रेंज. और रेंज क्या होता है, रियल नंबर फॉर साइन एक्स. तो यहां पर रियल नंबर आते हैं. रियल नंबर के अंदर मान लो 2 आ गया, तो कैन साइन एक्स इज इक्वल टू 2, ये चीज इसके इक्वल होनी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि साइन एक्स तो लाई करता है -1 से 1 के बीच में ही. तो इसका मतलब मेरी रेंज जो है, और जो मेरी कोड, सॉरी ये मैंने रेंज लिख दिया यहाँ, ये सॉरी, दिस इज कोडोमेन, दिस इज माई कोडोमेन. और रेंज मेरे पास होती है साइन की -1 to 1. तो रेंज और कोडोमेन तो अनइक्वल आई हैं, हेंस इट इज नॉट ऑन टू. इन सिंपल वर्ड, फाइनल कंक्लूजन अगर आप ध्यान से लॉजिकली सोचें, साइन एक्स ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है. इसका मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. So how can we talk about the inverse of sin x? Sin x मेरा फंक्शन ना ही 1 1 होता है ना ही ऑन टू है. और वो तभी क्लियर होगा व्हेन यू रीविजिट द डेफिनेशंस, जो थोड़ा बहुत आपने 11th में स्टडी करा हुआ है अबाउट द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन. दैट ऑल ऑलरेडी डन इन ग्रेड 11th. तो उसे थोड़ा सा जब आप रिलेट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि साइन एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू. अब अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, आई कैन नॉट टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स इनवर्स. बट इस चैप्टर का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. इसका मतलब डेफिनेटली इनवर्स तो हम एग्जिस्ट करवा ही रहे हैं. वो इनवर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए अब हम कुछ कंडीशंस को रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं. ये वही सेम सिचुएशन को यहाँ दिखाया गया है कि आपके पास क्या हुआ, ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम आई है. दिस इज एक्चुअली रेफर टू एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट टू चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट. तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपने कोई भी ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के पैरेलल, and if it intersects the graph at more than 1 point, then my function is not 1. बट स्टिल हम बात कर रहे हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की. तो अब इनवर्स साइन का कैसे एग्जिस्ट करेगा, आई नीड टू गो फॉर सम मैनिपुलेशंस. क्या मैनिपुलेशन करनी होगी, आई नीड टू रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ इनवर्स साइन फंक्शन. आप चेक करिए, अब आप डोमेन ले लें -1 से 1 तक में सिर्फ, और रेंज को कर दें -π/2 से π/2. लुक एट द ग्राफ ओवर हेयर.
इस फंक्शन में जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ करा हुआ है, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ था, पूरा ब्लैक पोर्शन था, और बीच में मैंने जो पोर्शन हाईलाइट करा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डोमेन मैंने कर दिया सिर्फ -1 से 1 के बीच में, मतलब मैंने ग्राफ लिया है, सिर्फ एज्यूम करा कि मेरा फंक्शन लाई कर रहा है -1 to 1 के बीच में। सेकेंड थिंग, मैंने इसकी रेंज को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2। व्हाट डज दैट मीन कि आपने ये लिया -π/2 और ये लिया π/2, और इसके बीच में जो ग्राफ बना है सिर्फ मैंने उस पोर्शन को कंसीडर कर लिया, इस पोर्शन को सिर्फ कंसीडर किया है। तो अब इसमें अगर अब आप ध्यान से देखें, इस रेड पोर्शन के अंदर दोनों कंडीशन चेक करें, इज इट 1 1? थिंक ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, check it out, it is cutting the red graph, the red portion at only one point। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करिए एंड वन कैन ऑब्जर्व कि अब -π/2 से π/2 के बीच में तो ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसीलिए ये फंक्शन एटलीस्ट अब 1 1 तो हो गया है। अब क्या है ऑन टू के लिए क्या मैंने कर दिया था, आपने -1 से 1 के बीच में ही सिर्फ इसका ग्राफ लिया है। इन अदर वर्ड, मैंने को डोमेन को फिक्स कर दिया है इक्वल टू रेंज। दैट इज मैंने फंक्शन जो मेरा था साइन एक्स उसे बना दिया है एज ऑन टू फंक्शन। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गई तो वो ऑन टू हो गया। अल्टीमेटली जो ये रेड पोर्शन में दिखाया है ग्राफ, अब ये हो चुका है 1 1 एंड ऑन टू, हेंस इन्वर्टिबल। तो अब इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, इसकी हेल्प से साइन इनवर्स एक्स का। तो वो अब आपको यहाँ पर क्या सोचना है कि आपने इस ग्राफ को, ये जो पोर्शन है ये, इस ग्राफ को पहले आपने 90 डिग्री रोटेशन दिया, राइट साइड में उठाया, राइट साइड में 90 डिग्री रोटेट कर दिया, और आपको फिर इसको फ्लिप करना होगा वर्टिकली 180 डिग्री। नाउ दिस कैन नॉट बी शोन इजीली ओवर हेयर, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई विल चेंज माय स्क्रीन, और अब मैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ा सा इसको विजुलाइज करवाने वाला हूं। तो ये जो चीजें मैंने अभी तक एक्सप्लेन करी हैं, एवरीथिंग इज अगेन रिटन इन अ प्रॉपर वे। ये आप होमवर्क में चेक करेंगे, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो आई विल नॉट रीड और डिस्कस दी स्लाइड्स, आपके लिए है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो मैंने वर्बली एक्सप्लेन करा है वो थ्योरेटिकली प्रॉपर वे में यहां दे दिया है। सो गारंटी मैंने क्या लिया कि एग्जिस्ट करवा दिया इनवर्स, कब, जब मेरा फंक्शन मैंने लिया था साइन एक्स को -π/2 से π/2 से लेकर -1 से 1 के बीच में। तो इस इंटरवल के बीच में, इस सिचुएशन के अंदर मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल हो चुका है। और एफ इनवर्स में देखो फर्क क्या पड़ेगा, लिखने का तरीका देखो बस। एफ इनवर्स एक्स क्या हो गया, एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स, और यहां क्या था, ये -π/2 से π/2 तक -1 से 1 था, यहां ये रिवर्स हो जाता है। इन सिंपल वर्ड, डोमेन विल बिकम कोडोमेन and codomain will become domain if we consider the inverse of a function. In fact, इन सभी ब्रांचेस के अंदर जो मैंने यहां लिखी हैं, -3π/2 से लेकर -π/2 भी अगर होता है, या π/2 से 3π/2, इनके बीच में भी
मेरा फंक्शन एक्चुअली इन्वर्टिबल है इन दीज डिफरेंट ब्रांचेस। वो आप ग्राफ को विजुलाइज करना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस वेयर द इनवर्स ऑफ अ साइन फंक्शन एग्जिस्ट, राइट। बट हम जो ब्रांच अपने सिलेबस में लेते हैं, जो बात करेंगे, दैट इज रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल ब्रांच। तो जो हमारे लिए रेफरेंस के लिए जिसमें हम ग्राफ लेने वाले हैं, दिस विल रेफर टू द प्रिंसिपल ब्रांच एक्चुअली। तो अदर ब्रांचेस में भी हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की बात कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए है वो हो जाएगा अल्टीमेटली प्रिंसिपल ब्रांच। एनी डाउट अप टू दिस स्टेप? Check this out. I have changed the view. Now you all must be watching some software. ऊपर लिखा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डॉट जीजीबी। कोई अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए। कैन यू? Yes, sir. Okay. Now check this out. This is my sin x वाला फंक्शन। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है 11 से ही। अब मैंने क्या करा, इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कहां से कहां तक? लुक केयरफुली, ओवर एक्स एक्सिस -π/2 से π/2। और अब इस पर्टिकुलर इंटरवल में मेरा फंक्शन हो गया है 1 1 एंड ऑन टू। देयरफॉर आई कैन ग्राफ इट्स इनवर्स, और इसका इनवर्स ये आ चुका है। ये पिंक ऑरेंज कलर से एक तरह से तो दिखाया है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये कैसे मैं जस्टिफाई करूंगा? लुक केयरफुली। जैसा कि मैंने बताया कि अगर a कॉमा b एक पॉइंट है फंक्शन के ऊपर, तो b कॉमा a उसके इनवर्स पे आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, रेड पॉइंट को, ऑन दी साइन एक्स वाला फंक्शन। डोंट यू थिंक सो? ये अगर मैं पॉइंट को जितना मूव कर रहा हूं, और इमेजिन करो इन दोनों के सेंटर से लाइन जा रही थी y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर ये ग्राफ से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट चल रहा है। आई होप इट इज विजिबल और समझ आ रहा है इसका सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन से, तो that will be always the same. In fact, in a similar manner, we can talk about the cos function. अब वो चीज क्विकली यहां ध्यान से देखिए। आई एम ग्राफिंग cos x फंक्शन। cos x का ग्राफ देखो, यही शुरू होता है ना, ऊपर cos 0 is 1, राइट। तो अब मैंने क्या करा, मैंने ओरिजिनल फंक्शन ड्रॉ कर दिया। अब की बार डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा है फ्रॉम 0 टू पाई। देयर इज अ रीजन, क्योंकि इस इंटरवल में अगर आप ध्यान से देखें हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, द फंक्शन विल बिकम 1 1। तो नाउ दिस फंक्शन हैज बिकम 1 1, और ऑन टू तो मैंने कर ही दिया था कि मैंने रेंज को -1 से 1 के बीच में रेस्ट्रिक्ट मान लिया है। तो ग्राफ मैंने सिर्फ -1 से 1 के बीच में ही ऑफ कोर्स लिया है। तो ये मेरा cos x का ग्राफ है इन अ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज। अब इसका इनवर्स ये जो बना है ऑरेंज कलर से, दैट विल रिप्रेजेंट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। एंड हाउ आई कैन जस्टिफाई? इमेजिन y इक्वल टू एक्स की लाइन, और अब आप जरा इस पे इस पॉइंट को मूव करिए, तो कैन यू ऑल इमेजिन कि ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस जा रहे हैं एज पर द लाइन y इक्वल टू एक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक विजुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग।
पॉइंट की मूवमेंट जितना ये पॉइंट दूर जाएगा y इक्वल टू एक्स से, तो बेसिकली आपने इन सभी पॉइंट्स का, ब्लू लाइन के पॉइंट को देखिए, आपने इन सभी पॉइंट्स की रिफ्लेक्शन, इसकी मिरर इमेज को लिया along y equal to x, एंड दैट मिरर इमेज विल गिव मी दी, उन सभी पॉइंट्स का लोकस जो है वो मुझे दे देगा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. तो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, और ये लाई करता है 0 से पाई के बीच में. कब? जब मैंने डोमेन को, फंक्शन की 0 से पाई में रेस्ट्रिक्ट किया था. And quickly check this out for the tangent function. This is the graph of tan function. मेन हम इस वाले पे फोकस करते हैं जो 0 के पास से जा रहा है. आपने इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. इसका ग्राफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ये है, ऑरेंज कलर. हाउ आई कैन जस्टिफाई? वो पॉइंट यहाँ ना वो दिखाना इजी नहीं हो पा रहा है, बट यू कैन इमेजिन कि अगर वो लाइन y इक्वल टू एक्स की जा रही है और मैं अगर ब्लू ग्राफ का मिरर इमेज लेता हूं तो वो मुझे ऑरेंज ग्राफ मिलने वाला है. तो पॉइंट, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आई कैन नॉट शो दैट पॉइंट ओवर हेयर. ठीक है, तो tan x में सिर्फ ये दिक्कत रहती है, बट वन कैन इजीली अंडरस्टैंड if the idea of sine and cos is clear. I hope the basic idea is clear to all of you. So that अब आप होमवर्क में अपने आप ये सारा जो दिया है ये मैं बता ही चुका हूँ. ये देखो, ये इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, उसका ग्राफ, तो आपको बस ये बेसिक ग्राफ वैल्यूज याद करनी है. दिस इज द अनदर विजुअलाइजेशन, रेड कलर में साइन इनवर्स एक्स है. सेम वे कॉस एक्स को स्टडी करा गया है. टास्क फॉर यू, फॉर योर होमवर्क, क्विकली गोइंग थ्रू द स्लाइड्स. इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के एग्जिस्टेंस की बात करी है. सेम चीज जैसे साइन एक्स को लिया है, 0 से पाई में कॉस एक्स आ गया, 1 1 एंड ऑन 2. दिस इज एक्सप्लेन्ड, पढ़ लेना इसको प्लीज ध्यान से. और अब कॉस इनवर्स एक्स आ गया -1 से 1 से लेकर अप टू 0 टू पाई. तो प्रिंसिपल ब्रांच जो है जो मैं ले रहा हूं वो 0, पाई हो जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल. ये अदर ब्रांचेस हैं. So this graph, or finally this purple color depicts the cos inverse x. And finally quickly check out in your homework, slide में share कर दूंगा. To save the time I will not take the tan x as well, that one can easily visualize and understand. In examination, as far as CBSE exams are concerned, generally they will not talk about the graphs of the function. आपको सिर्फ इनकी डोमेन एंड रेंज याद होनी चाहिए. तो इफ द डोमेन एंड रेंज और बेसिक ग्राफ का आइडिया है लाइक दिस, सो दिस शीट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. This is the most important, I mean the crux of the whole story comes over here. This is the main thing which you need to understand. Cos inverse x को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आर्क ऑफ कॉस लिखा जाता है. ये लिखा है ना जैसे साइन इनवर्स एक्स के साथ. चेक करिए, आर्क साइन. इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द ग्राफिक कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इनवर्स फंक्शन को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मुझे आर्क साइन एक्स लिखूंगा तभी मैं इस फंक्शन को ग्राफ कर सकता हूं. तो रिमेनिंग secant inverse x, cot inverse x, they are all shown in this sheet also. You may like to take a screenshot ताकि बेसिक शेप सिर्फ आपको याद हो जाए. All 6 functions with their domain and range. Ultimately, I will end my presentation over here. इसमें वो सब चीजें एक्सप्लेन कर दी गई हैं. So please learn the domain and range
फॉलोड बाय दिस टेबल। तो ग्राफ के साथ पीछे बताया है और ये टेबल है। तो बिफोर आवर नेक्स्ट क्लास आई अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप ये टेबल जो मैंने शो किया है आप इसको अच्छे से याद कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियली रिक्वायर्ड टू ऑल ऑफ अस। I hope the idea is clear to most of you. So practice करिए इसे. You can leave the meeting now. Thank you. Thank you, sir. Okay, take care. Thank you, sir. Okay, beta. Bye. Take care.